So let's start with periodic table lecture number 6, right? So we have done electron affinity. Now next is electron negativity. ठीक है, electron negativity क्या होता है and how it is different than electron affinity? So electron negativity is also agreed for electron but in combined state. So that is, electron negativity is ability of any element to attract electrons in combined state. Combined state means when it is forming a bond with something. So let's say A or B are forming a bond. Example. A and B are forming bonds. What will happen is, if the greed for electron and ability of electron or pulling the electrons of A is more, so what will happen? A is going to pull the electrons from B and will acquire a delta negative charge. And the B is going to lose electron, and that's why it will acquire delta positive charge. Delta means partial fraction. ठीक है, तो कंबाइंड स्टेट का मतलब है जहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, राइट, केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं. तो कंबाइंड स्टेट यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड एज केमिकल कंपाउंड. सोहन अपना माइक ऑफ रखो. ठीक है, so ability of any element to attract electrons in combined state or in chemical compound. So let's say A and B are forming bond. A is pulling the electron towards itself, so it is acquiring a charge delta negative. Delta means partial charge. B partial charge means fraction, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच ले जा रहा है. अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा तो क्या होगा? पोलराइजेशन, सॉरी आयनाइजेशन. पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या होगा? आयनाइजेशन. A has lost the electron, A has gained the electron. आयनिक बॉन्ड बन जाएगा उनके बीच में, राइट? So what is happening is partial charge, let's say displacement is happening. So charge इधर चला गया, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव. Now these are called dipole, है ना? जैसे मैग्नेट में होता है ना नॉर्थ एंड साउथ, तो वी आर सेइंग डाइपोल. वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो सेंटर आ गए, दो पोल्स आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल फॉर्मेशन. एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन आल्सो, है ना, राइट? डाइपोल फॉर्मेशन. ये हो गया dipole formation, and this is possible only due to if electron negativity of A is greater than electron negativity of B. क्यों पॉसिबल हुआ? कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A is greater than electron negativity of B. So electron negativity is kind of a ability to pull the electrons, and if somebody is having the, let's say, more electron negativity, then it is going to pull the electrons from others, right? And because of that the polarization will happen, dipoles formation will happen, and dipole formation means kind of polarization. Di मतलब दो, पुल. Dipole मतलब two poles. One pole is having negative charge, another one is having positive charge. So difference between, let's say, difference between electron affinity and electron negativity. Electron affinity is for isolated atom.
भाई अपना माइक माइक सब ऑफ करके रखो सारे लोग। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज फॉर बॉन्डेड एटम, है ना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, है ना, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। Unit is going to be, let's say, kilojoule per mole or electron volt per atom, and electron negativity is relative property. मतलब इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, राइट। So it's a relative property, cannot be measured, cannot be measured in units, है ना, or unit is not defined, we can say unit is not defined क्योंकि relative property है। cannot be measured का मतलब था हम उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दे सकते, मेजर तो कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, बट उसकी कोई यूनिट नहीं है। समझ में आ गया इतना। तो जल्दी से लिख लो जितने लोग नए आए, फर्स्ट पुराना भी। वो एब्सोल्यूट डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था। एब्सोल्यूट मतलब आइसोलेटेड, मतलब अकेला। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, अलोन। एंड एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मतलब, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का मतलब है जिसकी कोई वैल्यू हम निकाल सकें, है ना, जिसका कुछ मीनिंग हो, और विच इज नॉट रिलेटिव काइंड ऑफ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यही डेफिनेशन है, बट उसमें कंबाइंड स्टेट में नहीं है, होगा, है ना। कैसा होगा, एटम इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। हमने वहां बी से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा था, वहां पे हमने लिखा था एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन एक्स माइनस। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या है, बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको डिफाइन करने की दो स्केल हैं, two scales are let's say R2 are to define electron negativity. First है Pauling scale. Pauling scale. So what is Pauling scale, like how we are going to calculate? उन्होंने कहा कि जैसे मान लो ए एंड बी के बीच में बॉन्ड है, तो ये ए एंड बी के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसे बना होगा, राइट। लेट्स से विल अंडरस्टैंड लाइक दिस, ए के बीच में बॉन्ड है, बी के बीच में बॉन्ड है, और लेट्स से ए टू एंड बी टू आपस में रिएक्ट करके 2A भी बना रहे हैं। ठीक है, A2 एंड B2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2A भी बना रहे हैं। तो इनके बीच में ये वाला AA के बीच में ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, AB वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इक्वल शेयरिंग होती है ना,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब कोई भी एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं रहा होता। let's say both are let's say sharing electron, है ना, mutually, and the 50-50% is let's say electron shared. So focus over here. अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो भी बातें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं यहाँ से सुना है, और फिर बाद में जो छूट गया है उसको रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लें। ठीक है, कि मैं क्या कह रहा था, व्हाट आई वाज टेलिंग यू। क्या बता रहा था भाई? कॉलिंग स्किल में क्या बता रहा था कि, हाँ सुनो, है ना, इसलिए बीच में मत टोका करो, राइट। चलो, तो लेट्स से अगर ए आपस में बॉन्ड बना रहा है, बी आपस में बॉन्ड बना रहा है, और ये आपस में कंबाइन होके मतलब A2 एंड B2 आपस में कंबाइन होके AB बना रहे हैं, तो होगा क्या, ए के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बीबी के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ए भी बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अगर इनमें इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या फिर इनका आपस में एक दूसरे से, है ना, शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई चीटिंग नहीं है, राइट। इलेक्ट्रॉन इज लाइक मनी, मैंने बताया था ना केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन इज लाइक मनी। तो इन दोनों की बिजनेस में, है ना, ए और बी, राइट, दोनों फेयर है, 50-50% शेयरिंग होगी। मान लो ए जो है वो ज्यादा ग्रीडी है, क्या करेगा, इसके भी पैसे अपनी तरफ खींच लेगा, राइट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना, ए इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बी इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग की ये कह के कि यार चलो तुम्हारा धंधा, तुम्हारे में भी तुमको भी स्टेबिलिटी मिलेगी, मुझको भी स्टेबिलिटी मिलेगी, बट क्या हुआ, चुपके से अपनी पावर के दम पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, क्या होगा, पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके कारण क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी में कुछ चेंज होगा। तो बॉन्ड एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ पे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम एनर्जी होगी। ठीक है, अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इनके बीच ही बॉन्ड जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। या फिर आप वो फॉर्मूला याद रखो जो मैंने आपको बताया था, शूमाकर लेट्स से स्टीवेंसन फॉर्मूला, उसमें लिखा था 0.09 डेल्टा, राइट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उतनी कम। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। तो दिस बॉन्ड एनर्जी जो बढ़ रही है वो एक्चुअली किसके कारण बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण बढ़ रही है। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है। तो फिर से समझ लेते हैं, राइट। सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग यहाँ पे हैं, हाथ उठाओ, कितने लोग यहाँ पे हैं, बस हाथ उठाओ, पता चले कितने लोग हैं। ट्वेंटी एट लोगों ने हाथ उठाए हैं। अच्छा, अब इन 28 में कितने लोग ऐसे हैं जो लेट थे, वो हाथ उठा के रखें, लेट थे, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया। 12 लोग, 10, 11, सब लोग हाथ नीचे कर दो, 10, 12 लोग। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हाथ।
5 लोग हैं, बाकी मतलब 28 में से 6 लोगों को 7 धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सो के उठ रहे हैं 8, बाकी लोगों को आ रहा है समझ में? तो हाथ नीचे कर लो। फिर से सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? तो उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को आप किससे एक्सप्लेन करोगे? पार्टनरशिप में लालच, है ना। एक होता है पैसे का लालच और एक है बुरी नीयत। मतलब एक सब लोग एस्पायर चाहते हैं कि हमें पैसा मिले, राइट? एवरीबॉडी वांट्स, राइट, कि उनको इलेक्ट्रॉन, है ना, मिल जाए, पैसा मिल जाए। लेकिन एक ऐसा है कि किसी के साथ धोखे से पैसा ले लेना, राइट? पहले इसके साथ बॉन्ड बनाया, फिर उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया। समझ में आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी एक एटम की प्रॉपर्टी है ये, कि उसका जो भी जेड इफेक्टिव है उसके कारण आ रहा है। तो दोनों न्यूक्लियस में, अब आप ऐसे समझो, दोनों न्यूक्लियस में जेड इफेक्टिव है, ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भूल जाओ। दोनों लेट्स से न्यूक्लियस में जेड इफेक्टिव है, जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनकी न्यूक्लियस की बात हो रही है ना? अब अगर इनमें से एक का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? है ना, पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन को करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। जब कंबाइंड, जब दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, whenever two atoms are forming a bond, तो उनमें भी आपस में एक दूसरे की, जैसे रिलेटिव, वी आर गोइंग टू से दिस प्रॉपर्टी है कि कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है। वी कैन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नथिंग बट, है ना, लिखा है यहाँ पे, ability of any element to attract electrons in combined state. More electron negative element is going to attract more electrons. Less electron negative will attract or will lose electrons, right? अब इतना बात समझ में आ गई। मान लो ए और बी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ओनली इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब जब भी बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। जब भी ए और बी बॉन्ड बना रहे हैं, दो एलिमेंट है आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की 50-50%। चलो दोनों लोग स्टेबल हो जाते हैं, है ना। मॉलिक्यूल इसीलिए बनते हैं ना, गेन स्टेबिलिटी, राइट? यही हमने पढ़ा है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यस, ना बोलते रहे ना भाई, मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, राइट? हाँ, तो दोनों लोगों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ग्रीड फॉर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या करेगा? दूसरे के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइपोल। दो पोल बन गए ऐसे, है ना, डाइपोल। तो डाइपोल फॉर्मेशन हो गया। बात आई इनमें डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में? एफिनिटी इज डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड एटम, कोई भी एलिमेंट का कोई एटम है उसके लिए डिफाइन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिफाइंड फॉर बॉन्डेड एटम, दो के बीच में बॉन्ड बन रहा है। एंड देन वी आर सेइंग कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कौन ज्यादा लेट्स से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उसकी कुछ वैल्यू आएगी वो, है ना। ये केवल रिलेटिव प्रॉपर्टी किसी के रेस्पेक्ट में बताई जा रही है ना। A is more electron negative with respect to B, ऐसे। की यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसे। इसकी यूनिट डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि रिलेटिव प्रॉपर्टी है। बात आ जाते हैं आगे, इसको मेजर कैसे करते हैं फिर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कैसे बताते हैं, राइट? जैसे मान लो, एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम्हारा भाई, राइट, और तुम्हारे पापा, हाइट नापी जाए, जो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो तो इनकी एग्जैक्ट हाइट आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाइट। और आप में से एक दूसरे के रिलेटिव में बोला जाए, मान लो आपकी हाइट जो है आपके भाई के कंपैरिजन में जस्ट 1.5 टाइम्स है।
एंड आपके फादर की हाइट आपके भाई के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। जैसे मैंने इसकी हाइट डिफाइन कर दी x, तो ये कितना हो जाएगा 1.5x, कितना हो जाएगा 2x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी रिलेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आते हैं पाउलिंग स्केल। अब इनमें 2 स्केल है, एक साइंटिस्ट है पाउलिंग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के कारण क्या चेंज आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट ही इज गोइंग टू डिफाइन इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी वैल्यू। उन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा है कि मान लो A2 और B2 मिलके AB बॉन्ड बना, ठीक है। अगर इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता, कोई पोल फॉर्मेशन नहीं होता, राइट, सब 50-50% कंट्रीब्यूट करते हैं, ये जो नया बॉन्ड बन रहा है इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती, हाइपोथेटिकल लेट्स से बॉन्ड एनर्जी है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का एवरेज होती है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ EAA प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ EBB एवरेज होती डिवाइड बाय 2, ठीक है। AB की बॉन्ड एनर्जी बनती है अगर 50-50% होता, राइट, कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, हाँ या ना, ये बात नहीं समझ में आ रही है ना। हाँ, A और A में क्या है, 50% कंट्रीब्यूशन है, दोनों तो बराबर केपेबल है ना, A और A, राइट, दोनों सेम एलिमेंट है, यहाँ तो पोलराइजेशन होगा नहीं। B और B यहाँ पे भी 50-50% है। अगर मान लो A और B आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, उनमें 50-50 ही हो ना, क्या होगा, एवरेज ले लेंगे ना, राइट। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, समवट है ना, A इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन B, उसके कारण क्या होगा, A इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन B के कारण क्या होगा बताओ, A के इलेक्ट्रॉन और सॉरी B के इलेक्ट्रॉन A की तरफ खींचने लग जाएंगे, इनके बीच में, राइट, है ना, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस DAB, RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा, यस, डेल्टा मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो डिस्टेंस यहाँ कम। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, जितनी हमने सोची थी उससे ना अलग आएगी, और दिस बॉन्ड एनर्जी जो का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअल में आ किसके कारण रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण। लेट्स राइट द फॉर्मूला डायरेक्टली, इतनी कहानी समझाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, लेट्स से XA माइनस XB, है ना, ये डिफरेंस which is equals to 0.208 अंडर रूट डेल्टा AB, ठीक है, प्रेजेंट किलो कैलोरी पर मोल, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A एंड B का डिफरेंस 0.102 डेल्टा AB किलो जूल पर, है ना, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है। अब यहाँ टर्म क्वेश्चन आता है कि डेल्टा AB क्या है, डेल्टा AB है बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस ना, डेल्टा AB क्या है, डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस, ऐसे है ना, पहले हमने डेल्टा लिखा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, वो किसमें लिखा था, शूमाकर स्टीवेंसन फॉर्मूले में, ये डेल्टा बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा AB इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ AB माइनस एनर्जी ऑफ AA प्लस एनर्जी ऑफ BB डिवाइड बाय 2, बस इस डेल्टा को यहाँ डालेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंस साइन है, दिस इज डिफरेंस, मतलब हो सकता है ना B ज्यादा हो, डिफरेंस का मतलब है यू आर गोइंग टू टेक, डजंट मैटर, माइनस साइन नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। ये आ गया, ये है पाउलिंग स्केल।
आ गया। दूसरा है मलिकन स्केल। अच्छा, बिफोर वी आर गोइंग टू मूव पाउलिंग स्केल, तो पाउलिंग ने क्या किया, इस मेथड से उन्होंने कुछ वैल्यूज निकाल ली, है ना, एक दूसरे के रेफरेंस में रिलेशन में वैल्यूज निकालनी, तो वो वैल्यू याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी वैल्यूज याद रखनी है। कौन सी, जो मैं लिख रहा हूँ। तो नहीं, डेफिनेशन कुछ नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो और मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। डेफिनेशन तो ऐसे पूछ रहा है लड़का कि जो सारी डेफिनेशन याद हो जाएंगी। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है, बोलो। डेफिनेशन ये होती है पॉलिंग स्केल की, बता दे रहा हूँ। पॉलिंग स्केल इज बेस्ड ऑन द रेजोनेंस एनर्जी, or you can say bond energy, it is based on. So Pauling has actually calculated the energy difference and related that energy difference coming into different molecules because of electron negativity. वो बात वही है, फॉर्मूला याद रखो बस हो जाएगा। फॉर्मूला फॉर्मूला बस फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बस याद रखना है, और कुछ याद नहीं। इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रखना है, वैल्यूज याद रखनी है, इसकी वैल्यूज याद रखनी है जो हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू यहाँ लिखा रहे हैं उनकी, बस, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट, तो हाइड्रोजन की जो अप्रोक्सीमेटली लेट्स से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो है 2.1 के आसपास, 2.1, राइट। लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है अप्रोक्सीमेटली 1, बेरिलियम 1.2, इनफैक्ट 1.5, 1.5, बेरिलियम, बोरॉन है 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.5, क्लोरीन 4, ऐसे याद रख लो, हाफ बढ़ रही है, राइट, आसान है। ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, इसके आसपास है, 3.06 है, 3.54 है, बट ये वैल्यूज याद रख लो आप, ठीक है, आसान रहेगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता रहा हूँ ये मैं। सोडियम की कितनी होती है 0.9, मैग्नीशियम की 1.2, एल्यूमिनियम की 1.5, सिलिकॉन की 1.8, फास्फोरस की 2.2। फास्फोरस और हाइड्रोजन में फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रॉनिकेटिव, ठीक है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी 2.54 तक होती है, एंड सल्फर की लेट्स से वी आर गोइंग टू से 2.5, तो कार्बन से थोड़ी कम रहती है। क्लोरीन 3.1, ब्रोमीन 2.9 एंड आयोडीन 2.66, ऐसे। तो अब यहाँ पे हेंस ऑर्डर जो याद रखना है वो क्या है आपको, क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है, क्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद लेट्स से यू आर गोइंग टू राइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू नाइट्रोजन, सॉरी क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद अप्रोक्सीमेटली ये नाइट्रोजन आ गया। फिर उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, ये सब टुगेदर है ना। जगह पे आयोडीन की 2.6 भी लिखी जाती है, तो इसमें थोड़ा सा है कि ये आसपास ही है सब, ठीक है। तो ऐसा, फिर उसके बाद सल्फर के बाद आ गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हाइड्रोजन है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बोरॉन है, लाइक दैट, ठीक है। जिस सीक्वेंस में लिखा है उसमें ये ज्यादा है ना, मैं भी अगर यहाँ बराबर लिख रहे हैं वैसे ज्यादा होगा। तो ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, ये पहले बता दे रहा हूँ। चलें आगे चलें। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन नहीं होती, क्योंकि मतलब अब डिफाइन करने लग गए हैं, पहले डिफाइन नहीं की थी, क्योंकि तो किसी से बॉन्डेड बना ही नहीं रहे कंबाइंड स्टेट में, तो इसलिए, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू नॉट गैसेस की डिफाइन नहीं होती, नोबल गैसेस की डिफाइन नहीं होती, क्योंकि नोबल गैसेस कंबाइंड स्टेट में नहीं होती। बट यस, कुछ गैसेस के लिए बता सकते हैं, जेनॉन वगैरह के लिए। चलते आगे, नेक्स्ट है मलिकन स्केल, मलिकन स्केल, मलिकन स्केल। व्हाट मलिकन इज सेइंग, मलिकन हैज गिवन द फॉर्मूला की, है ना, XM का मतलब है मलिकन स्केल, ये क्या था XP, सारी जो वैल्यूज दे रखी हैं पॉलिंग स्केल वाली है। It's saying कि ionization energy plus electron affinity divided by 2, where ionization energy is electron ionization energy and electron affinity are in electron volt per atom। कौन सी यूनिट डालनी है यहाँ पे, कौन सी वैल्यूज डालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाली वैल्यूज डालनी है। जैसे कहीं पे आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है 960 किलो जूल पर मोल, लेट्स से, अब क्या करोगे, 96 से डिवाइड करोगे और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 10 को यहाँ लिखोगे, ठीक है। जो मलिकन ने लेट्स से वैल्यूज निकाली, राइट, उन वैल्यूज का जो ऑर्डर था वो सेम था जो पॉलिंग का था। अप्रोक्सीमेटली मलिकन स्केल वैल्यूज 2.8 times more than पॉलिंग स्केल। यहाँ पे आ गया रिलेशन बिटवीन XP पॉलिंग स्केल एंड XM मलिकन स्केल। वो रिलेशन क्या था, XM is 2.8 times XP, या फिर आप बोल सकते हो XP is XM divided by 2.8, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन हो गया, दोनों स्केल के बीच में। यूज कौन सी होती है, पॉलिंग स्केल, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में कभी दे रखा हो मलिकन स्केल, तो पॉलिंग स्केल में निकाल लेंगे वैल्यूज, यही होता है। यदि क्वेश्चन घुमा के देंगे ना, तो वो क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखे होंगे, पहले आप क्या निकालोगे, XM निकालोगे, और XM से फिर क्या निकालोगे, XP निकालोगे, पॉलिंग स्केल, ठीक है। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
पॉलिंग स्केल और मलिकन स्केल से क्या मिलता है हमें? ये वैसे ही हो गया जैसे किसी ने लेंथ दे दी है मीटर में और किसी ने दे दी है लेट्स से माइल्स में, है ना, या फुट में, है ना, ऐसे बस ये दो स्केल है, इनके बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या है? नॉट लाइक यूनिट्स, यूनिट्स तो फिर वो हो जाएगा ना कि तुम यू आर मेजरिंग इन समथिंग, स्केल की वैल्यूज हैं ये, है ना, 1 2 3, मान लो मलिकन स्केल के हिसाब से 1 2 3 ऐसे वैल्यू आ रही है, तो पॉलिंग स्केल के हिसाब से क्या आ जाएगी? 1/2.8, 2/2.8, लाइक दैट। यूज हम कौन सी करते हैं? पॉलिंग स्केल को यूज करते सर ये जो स्केल है मतलब किधर यूज, मतलब क्या किस लिए यूज होता है, मतलब क्या डिफाइन करने के लिए यूज होगा? हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइन करने के लिए यूज होंगी कि भाई कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कौन कम है, ओके ओके। तो ये वैल्यू से ही पता चलता है ना, कैन यू कंपेयर और नॉट। ओके सर, हाँ समझा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में पहला फैक्टर है जेड इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। हेंस लेफ्ट टू राइट in a period, electron negativity increases. We have already seen that part, है ना, लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है। ठीक है, सेकंड है, राइट, वी आर गोइंग टू से साइज। ठीक है, एटॉमिक रेडियस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, electron negativity decreases, or you can say electron positivity or metallic character increases। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, मेटेलिक करेक्टर। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है वो बढ़ता जाता है ना, टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है। और आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा था, राइट, पीरियोडिक टेबल जब हमने आपको याद दिखाई दी, राइट, तो उसमें क्या था, राइट, इफ यू आर गोइंग टू राइट लेट्स से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, इंडियम, हेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, लेट्स से जर्मेनियम, SnPV, ये ऐसे करके हमने एक सीडी टाइप की बनाई थी ना, रिमेम्बर, मेटलॉइड्स की। ये नॉन मेटल, ये मेटलॉइड, और ये क्या हो रहे हैं, मेटल बन रहे हैं ये। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटेलिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर घट रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, चले आगे, इतनी बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत? ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉप टू बॉटम घटेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्शंस भी होंगे और कुछ और बातें भी हैं। थर्ड जो चीज जो इफेक्ट करती है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, और यू कैन से चार्ज ऑन एटम। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एपरेंट चार्ज और एक्चुअल चार्ज ऑन एनी एटम। बताओ, जिससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, जिससे इलेक्ट्रॉन छिन गए हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या कम?
मतलब क्षितिज कह रहा है कम होगी, मतलब क्षितिज से अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाए, मतलब सारे पैसे इसके लूट लिए जाए, तो ये कम डेस्परेट हो जाएगा, है ना, इसको पैसे नहीं चाहिए, राइट। ये बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होगा, सारे पैसे लुटा के अरे वाह कोई दिक्कत नहीं है। कम या ज्यादा क्षितिज, दिमाग खोलो यार तुम लोग। सबको समझ में आ रहा है ना? ज्यादा उस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा डेस्परेट हो जाएगा ना भाई। चार्ज के हिसाब से भी देख लेते हैं ना। नहीं, स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब तुम्हें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मत लेके आना इसमें बीच में। आयनाइजेशन एनर्जी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, राइट। वहां पे आप बोलते हो कि बिकॉज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए थोड़ा जंप आता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, उल्टा है, उसे गेन करना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब जैसे हमने बोला था, राइट, उल्टा समझते हैं, x से x प्लस, x से x2 प्लस, यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी कि नहीं। इसका उल्टा, जब इलेक्ट्रॉन अगर खींचेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना, इससे हमेशा ही ज्यादा होगा ना, ये वाला मैग्नीट्यूड ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी और इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है भाई? कौन वैल्यू ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 में कौन ज्यादा होती है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 2 का ज्यादा है। यहाँ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा इससे, राइट, यस और नो। इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा डेस्परेट होगा, ये है ना। स्टेबिलिटी में जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। ये चलते हैं आगे। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, चार्ज ऑन एटम ज्यादा, है ना, चार्ज ऑन एटम मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर is proportional to electron negativity, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर में क्लियरिटी है, ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पे अगर जैसे मान लो माइनस है, -2, और कहीं पे है +2, कौन ज्यादा होता है, +2, है ना। क्लियर है, तो इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट से कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लिखते हैं, SnCl2 SnCl4, SnCl2 SnCl4, है ना। SnCl2 और SnCl4 में कौन वाला, किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। तो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, बताया था क्या, एक्स मेथड बताया था क्या। नो, हाँ या नाम में जवाब दे दो। यस, तो बहुत सारी हम कौन सा इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं, अभी हम चैप्टर नोट पढ़ रहे हैं रिडॉक्स। बस यहाँ पे इसका -1 है, इसका x हो गया। क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक ना, 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, खींच लेगा, एसएन से खींच लेगा ना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन। बस x -1 × 2 = 0, x = +2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एसएन ने 2। आज 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, कितने क्लोरीन, कितने लूज करेगा, 4। बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, SnCl4। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ SN, क्या आंसर क्लियर है, हाँ जी, यस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब होता है पोलराइजेशन ज्यादा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जहां ज्यादा है वहां पे पोलराइजेशन ज्यादा है, पोलराइजेशन ज्यादा है इसका मतलब क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। आगे हम पढ़ेंगे, ये बस यहाँ पे समझा दे रहे हैं, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैसे तो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज आल्सो गोइंग टू इन्फ्लुएंस आयनिक करेक्टर। क्या होता है आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर, जैसे थोड़ा समझ लेते हैं, देन वी विल मूव अहेड। आयनिक करेक्टर का मतलब है कि पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ए ने बी के साथ कंप्लीट ट्रांसफर कर लिया, मान लो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, उस पे कंप्लीट +1 चार्ज आया है ना, +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, इस पे कंप्लीट -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, ये है आयनिक, है ना। एक मिनट, हाँ, ये है आयनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है, +1 -1 ये चार्ज क्रिएट हो गया। अब मान लो पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन की तरफ इसकी निगाहें जाएंगी, राइट। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा तो खींचेगा ही ना। 100% दिया, मान लो 5% वापस ले लिया, तो होगा ना, 100% दिया, 5% वापस ले लिया, तो ये जो 95% है ये बोला जाएगा आयनिक करेक्टर। जो 5% रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, अगर कहीं पे बिल्कुल भी चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा, ए बॉन्ड है ना, यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट ही नहीं हो रहा है, इस पे भी चार्ज 0, इस पे भी चार्ज 0, इसको क्या बोलेंगे, 100% कोवेलेंट, क्योंकि चार्ज कितना आ रहा है, 0%, 100% कोवेलेंट, सही है। 100% ionic is not possible. There is always some covalent character in all ionic compounds. ठीक है, इसे सुनो, 100% आपने दिया और 5% वापस ले लिया, तो बचा कितना, 95% इफेक्टिवली आपने दिया ना, 95% हो गया आयनिक करेक्टर, 5% क्या हो गया, एक तरह से कोवेलेंट करेक्टर। तो ऑल, लेट्स से ऑल कंपाउंड्स, है ना, all ionic compounds are having some covalent character। फिर कहते हैं कि आयनिक और कोवेलेंट का डिफरेंस कैसे देख सकते हैं, तो जब आयनिक करेक्टर 50% से ज्यादा है, आयनिक करेक्टर का, आयनिक मतलब आयनिक करेक्टर 50% से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि वो आयनिक है। आयनिक कंपाउंड का आयनिक करेक्टर अगर 50% से ज्यादा है तो आयनिक है, और उसका आयनिक करेक्टर 50% से कम है या कोवेलेंट करेक्टर 50% से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट की तरह बिहेव कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। BeCl2 is behaves as covalent compound, BeCl2। बेरिलियम क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का है ना, जैसे NaCl, MgCl2, CaCl2, बट BeCl2 में क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब ऐसे इधर उधर की बातें थी, आयनिक और कोवेलेंट में थोड़ा बहुत आइडिया लगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी एलिमेंट की ज्यादा हो जाए, मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो इसने 100% दिया, ट्रांसफर किया प्लस और माइनस में, but because electronegativity of let's say B is let's say over here, है ना, एक मिनट, मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इसके कारण ज्यादा आ रहा है, राइट, ए और बी है, ठीक है, और यहाँ पे 100% लेट्स से चार्ज हमने दिया और फिर बाद में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण मान लो 60% वापस ले लिया, राइट।
60% वापस लेने के का मतलब क्या हो गया कि भाई 40% ही चार्ज सेपरेशन हुआ, 40% ही चार्ज सेपरेशन हुआ, इसका मतलब क्या है, कोवेलेंट करेक्टर 60% आ गया और आयनिक करेक्टर है ना 40% रहा, ऐसे। तो जितना ज्यादा यहाँ पे चार्ज वापस लिया जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज, उतना वो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा आएगा, है ना, उसमें उतना पोलराइजेशन होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा मतलब, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा मतलब कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस अगर कहीं ज्यादा आ रहा है तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। नहीं, उस पर आगे आएंगे, फजांस रूल में बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे। कितना समझ में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर में कोई प्रॉब्लम है ना, किसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, यस, हाँ भाई, ना भाई, यस, ठीक है, कोई दिक्कत? कितने लोग अब मेरी बात सुन रहे हैं, हाथ उठाओ, ठीक है। अब जो लोग नहीं सुन रहे होंगे हाथ उठाएंगे, उनको भगा दूंगा मैं, ठीक है। अभिषेक सिन्हा, बाद में मत बोलना कि सर मैं था। वेदिका, कहाँ थे बेटा आप? पहले हाथ उठवाया था तब नहीं थे आप? वेदिका रिप्लाई तो करो बेटू, मैसेज करो मुझे। तो हाँ हो, अरे माइक तो हम कह नहीं रहे, हाथ टाइप करके बोलो। आते पहले जब बोला था, क्या पढ़ा रहे हैं? चलो भाई, शेख अफान गायब है, ठीक है, शेख अफान गायब है, इनको वेटिंग रूम में डाल देते हैं। हितेश सहारे, फिर मैं वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, अगर आपके हाथ नीचे हो गए तो मत बोलना। ध्रुव गोगले, काव्या, अक्षित कालिया, कालिया, अभिषेक सिन्हा, हाथों पे रखो, मुझे नहीं पता, मैं नीचे, मैं उसमें डाल रहा हूँ, अगर आपने हाथ हाथ नीचे किया, यू आर ऑल्सो गोइंग इन वेटिंग रूम, मत कहना मुझसे कि सर मेरा हाथ ऊपर था। ठीक है, बहुत ही बेकार लैपटॉप है यार तुम्हारे पास वेदिका, बीच बीच में हैंग हो जाता है। हम्म, नया लैपटॉप ले लो यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। चलो अभी देखते हैं आगे। राइट, थर्ड फोर्थ फैक्टर क्या है? व्हाट इज द फोर्थ फैक्टर? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। क्या होता है ये परसेंटेज एस करेक्टर? हाँ, एस कम्प्लेक्स, जिसका कोवेलेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, वो जब किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है। अब आप लोग अपने अपने हाथ नीचे कर लो, सारे लोग।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब क्या है समझते हैं। तो आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, राइट। केमिकल बॉन्डिंग में क्या हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 sp2 sp। sp3 का मतलब क्या है, एक s 3p, 1s and 3p। out of 4 orbitals how many s are there, 1। परसेंटेज s करेक्टर कितना हो गया, आउट ऑफ 4 1 इज देयर, तो 1/4 into 100, 25%। sp2 1s 2p, तो टोटल कितने हो गए 3। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 आउट ऑफ 3 into 100, तो कितना हो जाएगा 33.33%। sp मतलब 1 आउट ऑफ 2 into 100, 50%। जहां sp करेक्ट sp हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे s करेक्टर 50%। s करेक्टर का मतलब क्या है, जो ये a और b आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, वो 50% चांस है कि वो s ऑर्बिटल में होगा, ऐसे समझ लो, है ना। अगर मान लो कहीं पे a और b आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और उनके बीच की हाइब्रिडाइजेशन sp है, बॉन्ड जो बन रहा है, का मतलब है कि b का इलेक्ट्रॉन का चांस है कि वो 50% जो है वो s ऑर्बिटल में होगा। s ऑर्बिटल मतलब न्यूक्लियस के पास होगा। न्यूक्लियस के पास का मतलब क्या है ना, क्लोजर टू न्यूक्लियस, लेट्स से उस पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, सही है ना। कहीं पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब है 25% ही चांस है कि वो s ऑर्बिटल में है, उतना क्लोजर नहीं है न्यूक्लियस के, उतना अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, हेंस sp की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ sp2 फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ sp3। अंडरस्टूड, ये बात समझ में आ गई। आगे पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में तो पूरी समझ में आ जाएगी। ये तो हो गए फैक्टर्स, राइट। हमें पता है कि, है ना, पे डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम घट रही है, तो एक्सेप्शंस देख लेते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत हो रही है, समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ, लास्ट कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, तो बस अब इसमें, लेकिन इसके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस देख लेते हैं। उसमें थोड़े कम एक्सेप्शंस हैं, राइट। तो एक एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ जिंक फैमिली। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ जिंक मतलब कायदे से क्या है, ऊपर से नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ जिंक जो है वो सबसे कम है, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कैडमियम, एंड फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मरकरी। ऐसा है। बताओ इसमें से मरकरी के कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट होंगे ना, GCl2 और ZnCl2, कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा, जी का, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, उसकी कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, राइट। अगर कोवेलेंट करेक्टर पूछा जाए, से यहाँ पे लिख लेते हैं ZnCl2 कैडमियम क्लोराइड एंड HgCl2, ज्यादा हो गया HgCl2।
ठीक है, एक तो ये एक्सेप्शन है। दूसरा लेट्स से एक्सेप्शन हम देख सकते हैं, एल्यूमिनियम फैमिली, मतलब बोरॉन फैमिली। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज देखोगे आप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये 1.2.5, ये आता है आपका 1.5, नहीं 1.5 नहीं, 2.5 मैंने वैल्यू देखा लिखी है, मैंने 1.5 लिखी है क्या? अच्छा 2 है ना, हाँ सॉरी, बोरॉन 2 है, राइट। 2 1.5, फिर ये आती 1.8, 1.8, 1.9 ऐसा आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एल्यूमिनियम जो है, इन सब में सबसे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो एल्यूमिनियम की है, एंड इसीलिए हेंस एल्यूमिनियम इज मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन बोरॉन फैमिली। मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट ना, एल्यूमिनियम मेटल है ना, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन बोरॉन फैमिली। बोरॉन नॉन मेटल है, बोरॉन क्या है? नॉन मेटल। एंड बोरॉन जो है उसकी लेट्स से डायगोनल रिलेशनशिप आता है, राइट। तो इसमें एक टर्म आता है डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? शायद पढ़ा होगा आपने डायगोनल रिलेशनशिप में, जो डायगोनली प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टी आपस में एक दूसरे से मैच करती है। लिथियम की मैग्नीशियम से, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, और बोरॉन की सिलिकॉन से। तो बोर सिलिकॉन क्या है? नॉन मेटल, तो बोरॉन भी नॉन मेटल की तरह कंसिडर होता है, ठीक है, सेकंड थर्ड पीरियड में। ये बस ऐसे ही है, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे समझा दिया है, तो रब कर दे रहा हूँ मैं। ये एक्सेप्शन याद रहेंगे। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी में कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एक मिनट, कौन है? डाउट आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो जज, क्या डाउट है? हेलो सर, आपने वो ऊपर लिखा था ना सडन फैमिली का, वो मेरे को समझ में नहीं आया। एक्चुअली जेड एन फैमिली में रीजन आता है वही कि आपका 4F के कारण जो है ना पुअर शील्डिंग होती है, जेड हाँ इफेक्ट सर, बढ़ जाता यस है सर। ना, इसलिए आता है, राइट, ये रीजन। और सर नीचे क्या लिखा, कोवेलेंट कैरेक्टर वो तो जिसका, जिसमें देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका कोवेलेंट करेक्टर थोड़ा ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव यस सर। करेक्टर कम तो मतलब मेटेलिक करेक्टर कम, ऐसे भी समझ सकते हो। मेटेलिक करेक्टर कम तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। मतलब मतलब कोवेलेंट और मेटेलिक अपोजिट है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा बताओ आप कि क्लोरीन और सोडियम में क्या रिलेशन है? सोडियम जो है वो आप रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और क्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यही है ना। हाँ सर। तो आपका आंसर आ गया आई थिंक। तो मेटल्स हैं जिनमें मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और जिनमें नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है वो क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यस सर, समझ गया। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में पहला एप्लीकेशन है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए देयर इज अ फॉर्मूला, इज हेनरी स्मिथ फॉर्मूला। क्या कहता है ना, परसेंटेज आयनिक करेक्टर मतलब
किसी भी आयनिक बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर आएगा, ठीक है। तो हेनरी स्मिथ फॉर्मूला, राइट। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज नथिंग बट is nothing but 16 delta plus 3.5 delta square, where delta is electron negativity of A minus electron negativity of B. Okay, delta is electron negativity difference. Now delta is electron negativity difference. Electron negativity of A minus electron negativity of B. Yep. एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिया सीजियम फ्लोराइड का। सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ना फ्रांसियम, एक्चुअली फ्रांसियम और सीजियम इक्वली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बट फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए फ्रांसियम नहीं लिया यहाँ पे, सीजियम ले लिया। लेट्स से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। तो जो सबसे लेफ्ट में है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम, और डाउन द ग्रुप फर्दर कम, तो क्या हो जाएगा, लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आती है 0.7। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सीजियम इज नथिंग बट 0.7। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कितनी आती है, 4 पॉलिंग स्केल के हिसाब से। हेंस डेल्टा कितना हो जाएगा, 3.3। परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना आ जाएगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा आपका 3.3 इंटू 16 प्लस 3.5 इंटू 3.3 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आई, 16 इंटू 3.3 52.8 प्लस 3.3 का होल स्क्वायर इज 10.1089 10.89। इससे जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, है 35 3.15 अप्रोक्सीमेटली 91%। तो इससे सीजियम फ्लोराइड का परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना है, 91%। अगर कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज आयनिक करेक्टर दे रखा हो, आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, हेनरी स्मिथ फॉर्मूला से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ले लो इन दोनों का, है ना। डिफरेंस क्या है, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू। 3.3 आ गया ना। दिक्कत यहाँ पे, हाँ ये याद रखना है, या तो गिवन रहेगा, राइट, गिवन रहेगा क्वेश्चन में। गिवन है, गिवन वैल्यूज याद रखनी है, याद है ऊपर बोला तो था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज की वैल्यूज याद रखनी है। फ्लोरीन की तो याद ही रखनी है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये याद रखना है, 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा की वैल्यू लिख दो, ठीक है भाई। ये जैसे मान लो ये चैप्टर खत्म होने को आ गया है, तो इसकी एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, वो कर लेना सॉल्व। नहीं अभी है एक दो।
तो जैसे मान लो इसमें कई क्वेश्चन दिख जाएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, अगर आप देखोगे जाओ, तो ये ले रखा है 1.2 और 3.4 है, राइट, और इसके बीच में लेट्स से इतना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज वैल्यूज, टाइप ऑफ बॉन्ड कनेक्टिंग ए एंड बी कंपाउंड इज, आप बोल सकते हो कि राइट ये कैसा कैसा बॉन्ड बनेगा, राइट, इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना 2.2 है ना, 2.2, तो अगर 2.1 से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो वो आयनिक होता है, ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं ऐसे, नोट, हेंस according to Henry Smith formula, if delta is greater than 2.1, percentage ionic character is more than 50%. अगर डेल्टा की वैल्यू 2.1 से ज्यादा होगी तो आयनिक करेक्टर 50% से ज्यादा होगा, हेंस कंपाउंड इज आयनिक, हेंस कंपाउंड इज आयनिक। आप इसमें पुट करके देख लोगे ना, 3.5 डेल्टा स्क्वायर एंड 16 इंटू 2.1, इससे जो वैल्यू आएगी वो लगभग है ना 50 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, 50 के आसपास ही आएगी। इससे पता चल रहा है कि कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक करेक्टर 50 से ज्यादा है। ये तो बात है हेनी स्मिथ फॉर्मूला, राइट। एक और यहाँ पे लिख लो नोट, अकॉर्डिंग, एक और साइंटिस्ट है गैलिस, अकॉर्डिंग टू गैलिस if delta is more than 1.7, ठीक है, उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया लेकिन उन्होंने नेचर मतलब जो देखा, राइट, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको मतलब देखा और उनमें बोला कि अगर डेल्टा की वैल्यू 1.7 से ज्यादा है तो वो आयनिक है, और अगर डेल्टा की वैल्यू 1.7 से कम है तो वो कोवेलेंट है, पोलर कोवेलेंट हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट का मतलब चार्ज सेपरेशन हो ही रहा है, पोलर है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट करेक्टर। साइंटिस्ट का नाम है गैलिस, GALLIS, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, इन्होंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, इसलिए जब भी कभी कैलकुलेट किया जाएगा हमसे, हम हेनरी स्मिथ फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ये तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, और देख लेते हैं। अच्छा ये तो मिक्स है, ये लिखा हुआ है ionization energy of an atom is 10 electron volt, electron affinity 6.8, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ स्पीसीज इन ऑन पाउलिंग स्केल, तो मलिकन स्केल से पहले निकाल लेंगे, 10 + 6.8 डिवाइड बाय 2, 16.8 डिवाइड बाय 2 इज 8.4, फिर इसको 2.8 से डिवाइड कर देंगे तो पाउलिंग स्केल पे वैल्यू आ जाएगी 3, है ना, ऐसे। मलिकन स्केल पे वैल्यू दे रखी है, पाउलिंग स्केल पे पूछ रहे हैं, डिवाइड बाय 2.8, वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये कर लेना। चलो कितना हो गया? अरे नहीं भाई वेट करो, फिनिश, फिनिश क्या है, खत्म कर देंगे, फिर दो चार चीजें नहीं आएंगी। अब बात आती है नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे है,
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, ये याद रखना है, ठीक है। एसिडिक नेचर बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल में बात करूं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7, ये सब ऑक्साइड्स हैं। तो आप देख रहे हो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, और इसी के कारण जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक, ठीक है। ये बेसिक, लेट्स से दिस इज नॉट दैट मच स्ट्रांगली बेसिक बट बेसिक। एम्फोटेरिक, Al2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक। SiO2 वीकली बेसिक, वीकली एसिडिक, सॉरी वीकली एसिडिक, acidic, and these two are strongly acidic. You can see left to right, acidic nature बढ़ रहा है and basic nature घट रहा है। Amphoteric means which will react with, यहाँ पे दो बातें लिख लेते हैं। Basic oxide means which reacts with acid, acid or acidic oxide, ठीक है। Amphoteric means which reacts with both acid as well as base, ठीक है। And acidic means which reacts with base। इतना समझ में आ गया। अगर तुमसे पूछा जाए ऐसे इन जनरल कि which of the following oxide, है ना, ऐसे जनरल पूछा जा रहा है, which of the following oxide will be absorbed in KOH, ऐसे लिखा हुआ है, which of the following oxide will be absorbed in KOH। ऑप्शंस के लिखे हुए हैं CaO, Na2O, CO2, right, and let's say Al2O3। Which one is the best answer over here? है ना, KOH में कौन एब्जॉर्ब होगा, KOH में तो पूछा ही है, आंसर KOH थोड़ी ना हो जाएगा। बताओ KOH क्या है, एसिड है बेस है, एसिड है बेस है, KOH बेस है। बेस से बताओ कौन रिएक्ट करेगा, कौन सा वाला ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, कौन है इनमें एसिडिक, CO2। समझ में आया, चमका या नहीं चमका? अभी यही तो समझाया था। कोई मुझे आंसर दे रहा है CaO, बेस बेस से रिएक्ट कर लेगा क्या, बेस बेस से रिएक्ट कर लेगा, NaOH KOH से रिएक्ट कर लेगा, NaOH KOH मिलकर क्या बनाएंगे, नहीं करेगा ना, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट क्या होता है, बेसिक नेचर बढ़ता है, सॉरी एसिडिक नेचर बढ़ता है, और बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। अब इसमें बात आती है कुछ और, जैसे कुछ मेटल्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उनके नेचर ऑफ ऑक्साइड और एसिडिक हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में लिख लेता हूँ, जैसे पहले मैं लिखता हूँ सल्फर का एग्जांपल, बताओ SO2 और SO3 में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, SO2 और SO3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4, इसका +6, एसिडिक नेचर बताओ किसका ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। यस यस, हाँ भाई, समझ रहा है, दिख रहा है सबको?
इसी के तर्ज पे क्या है ना, सर्टेन लेट्स से ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो एसिडिक, सर्टेन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ट्रांजिशन मेटल है बट उसके ऑक्साइड क्या है, मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है। सर्टेन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। लेट्स सी MnO2, Mn2O3, MnO3, Mn2O7, +2 +3 +6 +7, Mn+7 में ये MnO2 तो होता है बेसिक, ये एम्फोटेरिक टाइप, बट MnO3 और ये Mn2O7 ये क्या होते हैं, एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड है। इसी तरह से CrO, Cr2O3 and CrO3, CrO basic, amphoteric, acidic। इसी तरह से B2O3, B2O4, B2O5 बेसिक एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक याद रखने हैं आप, तो याद देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे बेसिक करेक्टर घट रहा है, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, इसीलिए तो ये एम्फोटेरिक तक पहुंच गया है ना, +5। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं नेम्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नेम्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेम्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या है, एग्जांपल BeO, Al2O3, ZnO, SnO, SnO2, PbO, PbO2, Sb2O3, ठीक है, Cr2O3, Mn2O3, B2O5 etc। कॉमन है, बहुत कॉमन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें और पूछे जाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मींस which are not going to react with acid as well as base, now will not react with either acid or base, इनको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। और इनके एग्जांपल क्या है, CO, NO, N2O। N2O is also called as laughing gas। N2O का नाम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, बताओ भाई N2O का नाम। नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड, नॉट नाइट्रिक, नाइट्रस का नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO का। ठीक है, देखो अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा तो दो नाइट्रोजन है 2x और ये हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। बात समझ में आ रही उत्सव। तो NO में इसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2, -2 है, दो नाइट्रोजन है, ये +1। सॉरी अस और एक नेमिंग कैसे आती है, जैसे मैं बोलूं बताओ, ये लिखा है FeSO4, इसको क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक सल्फेट। जिसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसमें क्या सफिक्स लगाते हैं, जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसको क्या लगाते हैं, अभी देखो
SO2 H2O से रिएक्ट करके बनाता है H2SO3। SO2 पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर में +4 देखी थी, एंड SO3 की अगर वाटर से रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, H2SO4। क्या नाम है बताओ इनके, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, एक समझ में आया, एक क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। नाइट्रस नाइट्रिक, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस प्लम्बिक। सब जगह पे क्या आएगा, अस मतलब लोअर, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ ऑक्साइड, और इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखना। SiO2 जो है ना वो एसिडिक एसिडिक होता है, एम्फोटेरिक नहीं होता है। एक होता है एम्फोटेरिक मेटल और एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या एम्फोटेरिक एलिमेंट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में SiO2 नहीं आएगा, बट एम्फोटेरिक एलिमेंट में देखा जाएगा तो सिलिकॉन आता है एम्फोटेरिक। तो बोरॉन भी एम्फोटेरिक एलिमेंट है। बोरॉन कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, B2O3 इज एसिडिक। बेरिलियम मेटल है बट BeO जो है वो क्या है, एम्फोटेरिक। तो थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, बीच बीच में ऐसे है। एम्फोटेरिक मींस व्हिच आर गोइंग टू रिएक्ट विद मेटल, नॉन मेटल मतलब एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा और एक दो चीजें रह गई हैं, मतलब लगभग लगभग खत्म है ये आपका चैप्टर। तो उसमें अब आता है नेक्स्ट, हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बारे में मैंने थोड़ा ऊपर बताया था। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, अगर कोई गैसियस लेट्स से आयन जो है वो पानी में जाता है, जो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो क्या हो जाएगी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी ना। एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 मोल gaseous ion ना, gaseous ion undergoes hydration। मीन्स कोई भी लेट्स से आयन है, लेट्स से X+ है गैस, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया और ये बन गया X+, लेट्स से एक्वस। एक्वस का मतलब है वाटर ने घेर लिया। जो भी एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा H रिएक्शन विल बी व्हाट, नथिंग बट हाइड्रेशन ऑफ कैटायन। ऐसे ही कहीं पे अगर मान लो Y- है, वो गैस H2O से लेट्स से रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, Y- एक्वस। और ये जो भी डेल्टा H रिएक्शन है, जो भी ये रिएक्शन है, वो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन। I should write HEC यहाँ पे, हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन, एंड ये होगा हाइड्रेशन एनर्जी एनायन। समझ में आया, हाइड्रेशन। जैसे ही कोई कैटायन या एनायन जैसे ही पानी में गिरता है, वाटर बीइंग पोलर मॉलिक्यूल, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक डाइपोल टाइप का बन गया, मतलब पोलर मॉलिक्यूल बन गया ये। और जैसे ही कोई आयन आएगा, अगर कोई कैटायन आया तो ये ऑक्सीजन उसकी तरफ है ना देख हो जाएगा, अगर कोई एनायन आया तो हाइड्रोजन वाला एंड उसकी तरफ हो जाएगा, और ये क्या बनाएंगे, फिजिकल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
फिजिकल बॉन्ड बनाएंगे, उसके कारण क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी कहलाई जाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? कौन सा साइन था, मतलब डेल्टा? डेल्टा था, डेल्टा, ये वाला डेल्टा। ये भी डेल्टा होता है, पार्शियल चार्ज के लिए डेल्टा बोलते हैं इसको। ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है ना। dy बाई डी एक्स पढ़ लिया, dy बाई डी एक्स पढ़ लिया डिफरेंशिएशन में, जो d था वो डेल्टा ही तो था। ओके, जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है वो देख लेते हैं। हाइड्रेशन इज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई साइज रेशियो। ना k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। Q1 हो गया चार्ज और R क्या हो गया, साइज। बताओ अगर हाइड्रेशन देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा, हेंस हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर किसका होगा, लिथियम प्लस लेट्स से सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, है ना। ये गैस में है सारे आयन, इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। सब में चार्ज सेम है +1। साइज किस में बढ़ रहा है, सीजियम में। बड़ा साइज तो हाइड्रेशन कम। यही रीजन मैंने बताया था कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होती है एंड इसी के कारण वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी के बाद बात आती है, ये याद रखना है ना, चार्ज बाई साइज रेशियो। हाइड्रेशन एनर्जी के बाद जो बात आती है उसको बोलते हैं, अच्छा हाइड्रेशन एनर्जी के बाद हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई का मतलब क्या हुआ, पहले हाइड्रेटेड रेडियाई इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। जैसे अगर मान लो एक छोटा सा यहाँ कैटायन है, राइट, उसको वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे देखने आ गए, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही लेयर बनती है, लेयर के ऊपर लेयर बन जाती है ना। ये वाटर के मॉलिक्यूल आए, फिर यहाँ पे लेयर और बन गई, और इसके कारण जो ये जो साइज होता है, वो जो साइज निकल के आता है वो हाइड्रेटेड रेडियाई निकल के आती है। समझ में आ रहा है, कैटायन तो छोटा ही है बट वाटर के मॉलिक्यूल ने घेरा, एक लेयर बनी, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, ऐसे करके साइज बढ़ता जाता है। हाइड्रेटेड रेडियाई किसकी ज्यादा होती है, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, रेडियाई की बात आ रही है तो फिर वो पूछेंगे Li प्लस गैस या एक्वस, तो एक्वस का रेडियाई ज्यादा है। गैस में किसका ज्यादा था, सीजियम प्लस का, है ना। एक्वस का मतलब क्या है, वाटर ने घेर लिया है उसके बाद भी चेकिंग। यू गेटिंग द पॉइंट, में इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये और इसमें। ठीक है, lithium plus aqueous is more than Na plus aqueous, then K plus aqueous, then rubidium plus aqueous, then cesium plus aqueous। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, फिर से सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुनो। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई आदमी है वो खुद में पतला है, लेकिन वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उसके चारों तरफ लोग हमेशा घूमते रहते हैं ना, नेता टाइप है ना। तो लेयर लगी हुई है सिक्योरिटी की, जहां घूमेगा उसके साथ साथ वो लेयर जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट। अभी जो हम हाइड्रेटेड रेडियाई की बात कर रहे हैं, वहां पे उस आदमी के साइज की बात नहीं कर रहे हैं, तो आदमी के साथ जितना दल बल सब घूम रहे हैं उस पूरे की साइज की बात कर रहे हैं। समझ में आया? हम कह रहे हैं जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसका दल बल ज्यादा होगा, है ना। उसके साथ जो लोग घूम रहे हैं ज्यादा होंगे, उसका साइज बढ़ जाएगा।
अंडरस्टूड, समझ में आया? लिथियम प्लस है तो छोटा, उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसे घेरते हैं, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेरते हैं तो फिर उसका साइज बढ़ जाएगा, लिथियम प्लस एक्वस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसमें एक और चीज आती है भाई, अच्छा आप सबको ये पता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ये इसलिए होता है क्योंकि ये यहाँ पे हमने बताया चार्ज बाई साइज रेशियो। हाइड्रेशन किस बात पर डिपेंड करता है? हाइड्रेशन का मतलब ही क्या है? केटायन को वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया, क्यों किया भाई? वाटर के मॉलिक्यूल ने क्यों सराउंड किया? प्लस और माइनस का इंटरेक्शन लगा, डेल्टा माइनस माइनस का इंटरेक्शन लगा, यस यही समझाया था ना अभी। पॉजिटिव को वाटर ऐसे घेरेगा, इनके बीच में इंटरेक्शन बन रहे हैं, राइट? ये इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एफ के Q1 Q2 बाई आर, इस पे डिपेंड करेगा ना। हाँ ना बोलते जाओ भाई, है ना? यस और नो, जब डाउट पूछते हो तो जल्दी जल्दी बता दो जाओ, यस नो यस राइट। तो बस इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, राइट? हाइड्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? Q1 R, है ना? What is the charge of this cation? What is the size of this cation? है ना, फोर्स फोर्स लिखा है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्ज बाई साइज रेशियो पे डिपेंड कर रहा है हाइड्रेशन एनर्जी। इतना समझ में आ गया? हाँ ना बोलो ना बेटा, आपके बिना आपने डाउट पूछा है, आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे तभी तो आगे जाएंगे। ठीक है जश, हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? इसका साइज कम होगा, लिथियम का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगी, है ना? ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आगे आगे सराउंड करेंगे, यही तो समझा रहे हैं। अब बताओ, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ना? मान लो पानी में नमक पड़ा हुआ है Na+Cl-, इसमें हमने दो ऐसे मान लो वायर डाल दिए, बताओ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी यहाँ से यहाँ? दो वायर डाल दिए एक, है ना? इसमें पानी के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी या नहीं? हाथ डालोगे तो करंट लगेगा या नहीं? हाँ भाई, हाँ लगेगा ना सबको, करेक्ट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, आयन है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट, है ना, इसके कारण फ्लो होती है आयंस के मूवमेंट के कारण। करंट का मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज। डजंट मैटर कि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है या चार्ज कैरियर कोई आयन है। इतनी आसान आई? करंट का मतलब है मूवमेंट ऑफ चार्ज, है ना, कितना चार्ज पास ऑन हो गया। जब मेटल्स की बात होती है, जो मेटल जैसे वायर होते हैं, उनमें जो चार्ज कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन। बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जितने मूव करेंगे उसके हिसाब से करंट आएगी। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन इज नॉट द चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर आर आयंस, आयंस के मूवमेंट के कारण आएगी। अब समझो, मान लो एक जगह है लिथियम प्लस एक्वस और एक जगह है मान लो सोडियम प्लस एक्वस, कौन सा वाला चार्ज जल्दी मूव करेगा? क्योंकि जितना ज्यादा पर सेकेंड है ना, करंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, चार्ज ट्रांसफर डिवाइड बाय टी, क्यू बाई टी, राइट? पर सेकेंड कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, राइट? तो जो जितनी जल्दी फास्ट मूव करेगा के कारण जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, करंट का फ्लो है, वो ज्यादा होगा। बताओ लिथियम प्लस एक्वस और सोडियम प्लस एक्वस में कौन जल्दी मूव करेगा? इज गोइंग टू मूव फास्ट।
विल मूव फास्ट। मूव करने के लिए क्या देखते हैं, कौन जल्दी जल्दी मूव करेगा, मोटा है ना, बड़ा, छोटा, कौन जल्दी तेज दौड़ेगा, बताओ जल्दी भाई बताओ, मोटा, पतला, कौन जल्दी मोटे दौड़ेगा, स्मॉल, राइट, सही है ना, स्मॉल। तो कौन है स्मॉल, लिथियम प्लस स्मॉल है कि एक्वस स्मॉल है, या Na प्लस एक्वस स्मॉल है? अरे यार, लिथियम एक्वस की बात हो रही, पानी में, वाटर। लिथियम कैसे स्मॉल है, लिथियम प्लस एक्वस हाइड्रेटेड है, सबसे बड़ा है ना साइज में, ये तो बताया, लिथियम प्लस एक्वस। हम लिथियम गैस की बात नहीं कर रहे हैं, पानी में बात कर रहे हैं, लिथियम प्लस वाटर। पानी में कौन जल्दी भागेगा, गेटिंग माय पॉइंट भैया, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों के? कंडक्टेंस ना का ऑर्डर क्या हो गया, लिथियम प्लस, कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी और स्पीड, ना, स्पीड ऑफ आयन, which is inversely proportional to size of ion, size of, size मतलब हाइड्रेटेड रेडियाई ऑफ आयन। लिथियम प्लस को हम कहाँ भगा रहे हैं, पानी में भगा रहे हैं ना, तो लिथियम प्लस गैस की बात करेंगे, लिथियम प्लस एक्वस की बात करेंगे। राइट, एक्वस की। तो फिर आंसर समझ में आ गया अभी सबको? मत बोलना कि नहीं समझ में आया, बोलेगा उसको डांट पड़ेगी। अपनी बुक में इसका एक आंसर जो है वो गलत दे रखा है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आपको लगे कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो गलत दे रखा है, ठीक है, यही आंसर। क्लियर है इतना, समझ में आया? ये ऑर्डर एकदम उल्टा हो गया, ये गलतियां करते हैं बच्चे कई सारे, है ना, यही कॉन्सेप्ट आ गया। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि साइज बढ़ रहा है हाइड्रेशन के कारण, इसलिए स्लो डाउन हो जा रहा है। तो राइट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो क्या है, कंफ्यूजन है, राइट। तो जो बातें हमने यहाँ पे की हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपका खत्म हो रहा है, एक आध छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, वो हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे तब बता देंगे, ठीक है। अब अब बताओ भाई, है ना, एटॉमिक हमारा डिस्कशन पूरा हो गया था, राइट, मोल बचा है डिस्कशन में, और पीरियोडिक बचा हुआ है। और इस बार अब आपके एग्जाम में कौन आ रहा है, अभी देखो आपका टाइम टेबल आ गया उसमें। पहले मोल कर लेते हैं, जो भी एटॉमिक वगैरह का डाउट बचा होगा तो देख लेंगे, बट बेसिक बेसिक एटॉमिक में थोड़ा बहुत तो डिस्कशन हो चुका है ना। कौन बताएगा मुझे, बताओ, संचय बताओ, आप कितना हो चुका है डिस्कशन? कौन है, कौन? संचय इज नॉट हियर आई थिंक। कौन बताएगा मुझे, जिसको पता है पूरा? हाँ, जिसको पता है, जस्ट लो सब बताओ। हाँ, क्या करा दिया है? क्योंकि 17 को आपका केमिकल बॉन्डिंग भी आ रहा है, तो वो भी आपका कंप्लीट कराना है 17 तक। बताओ, आई कैन नॉट हियर यू। चलो कोई नहीं, जो जो भी है, सबसे पहले जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपका, है ना, मोल का कर रहे हैं। मोल में जो जो भी डिस्कशन है, इस वीक डिस्कशन क्लास रखेंगे, बताओ उसमें पूरा आप डिस्कस, मतलब पूरा मोल जो भी रह गया होगा सब करा देंगे। तो कब रख लें वो क्लास, तो जल्दी से बताओ। थर्सडे रख लें, थर्सडे, थर्सडे इज फाइन। फ्राइडे, चलो फ्राइडे, फ्राइडे जो है ना, मूल कॉन्सेप्ट का डाउट डिस्कशन होगा, ठीक है।
फ्राइडे के बाद जो नेक्स्ट वीक का फ्राइडे आएगा उसमें पीरियोडिक टेबल कर लेंगे, तो आपके पास पूरा एक वीक मिलेगा उसके बाद। कल से अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, कल से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट। ठीक है, फिर वी आर फिनिशिंग नाउ। कॉन्सेप्चुअल डाउट अगर है आपको तो अभी पूछ लो, क्लास जब भी स्टार्ट होती है उसमें 5-10 मिनट 15 मिनट होते हैं उधर, तब पूछ लो क्लास के पहले। अभी आपको डाउट है, जिनको डाउट है वो रुके, बाकी लोग जाएं। आज बताओ क्या डाउट है कमलेश? अभी पूछना है, कल पूछना है, कब पूछना है, जल्दी बताओ। कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो अभी पूछ लो। अगर पीओएसी में डाउट आपको आ रहा है तो जो भी क्वेश्चन के साथ करेंगे तो बता देंगे आपको, ठीक है। तो हाथ उठाओ जो भी डाउट है। पीओएसी का मतलब क्या है? अरे यार पीओएसी में तुम लोग काहे घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो? एटम्स, जैसे मान लो मैं कहूँ, अच्छा जस्ट इमेजिन एक कोई सब्सटेंस है ए, ये कोई सब्सटेंस है ए ऐसा दिख रहा है, लेट्स से, जस्ट इमेजिन, काइंड ऑफ जस्ट इमेजिन इसमें ये कोई एक एटम है पर्टिकुलर एलिमेंट का, है ना, ये वाला एटम। मान लो ए से कुछ बना, बी बना, बी से सी बना, राइट। ये जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इधर भी सेम ही रहेंगे ना। अगर हम ये मान रहे हैं कि ये वाला एलिमेंट कंजर्व है, इतने सारे एटम में अगर इसका एक ही एटम था तो यहाँ पे भी एक ही एटम रहेगा, राइट। हमने बोला एटम्स आर कंजर्व, इतनी बात समझ में आ गई। एटम्स आर गोइंग टू कंजर्व, यही एग्जांपल हमने कहाँ देखा था, क्या था वो, कंपाउंड साइड था आई थिंक, कार्बन था, कार्बन, राइट। CaCO3 का कार्बन था, पता नहीं किसका, अच्छा CaCO3 का कार्बन है। और हमको कुछ K2Zn होल थ्राइस क्या लिखा बना रहे थे, है ना, ऐसा कुछ CN होल 6 होल ट्वाइस ऐसा कुछ बना रहे थे, राइट। जैसे इमेजिन, अभी भूल जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली। ऐसा कुछ था कि कार्बन जो है यहाँ से यहाँ, all carbons are going to convert into this। तो पहले सीधा समझते हैं। मान लो अगर यहाँ 100 एटम थे, सीधा समझ रहे हैं, 100 एटम कार्बन के थे ऑफ कार्बन, यहाँ पे भी 100 एटम कार्बन के होंगे। मान लो इसके 100 के 120 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 12 आ रहा है, सिंपलिसिटी के लिए 20। हम बोलेंगे कि अच्छा इसके एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम है, फिर 10 मॉलिक्यूल, है ना, K2Zn होल थ्राइस इसके हो जाएंगे 10 मॉलिक्यूल, क्योंकि 12 एटम का एक मॉलिक्यूल बनता है तो 120 एटम के लिए 10 मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे इसमें तो एक ही एटम आ रहा है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे वो कितने हो जाएंगे, 120, ठीक है। मान लो हमें ये नहीं पता है, लेट्स से, है ना, ये तो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर दिया। मान लो ये नहीं पता है, हमें ये पता है लेकिन 10 मॉलिक्यूल है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इनटू 12, यही तो लिखेंगे, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इनटू 12 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दिस CaCO3 इनटू 1, यही तो लिखेंगे। सुन लो भाई, जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, इतनी बात समझ में आ रही है? क्या नहीं समझ में आ रहा, हाथ उठाओ। सर सेकेंड लाइन 10 मॉलिक्यूल ऑफ K2ZnO3। तो भाई ये बताओ कि अगर आपके पास 120 कार्बन एटम है और एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम, यस सर। तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे?
12 कार्बन एटम है और 12 मॉलिक्यूल। नहीं, 12 मॉलिक्यूल नहीं है, एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम। मान लो आपके पास 120 बॉल है, 120 बॉल्स हैं, आप 10 बॉल का एक पैकेट बना रहे हो, तो बताओ कितने पैकेट बन जाएंगे? सर एक ही बनेगा। आपके पास 120 बॉल्स हैं, यस सर। 20 बॉल्स हैं, उन सबके बनाने हैं, कितने पैकेट बनेंगे? सर 12 बनेगा। 12 बनेंगे, कैसे? सर एक में 10 जाएगा तो एक में 10, 120 12 है, सॉरी, एक में 12 है। तो सर 10 बनेगा। बस 120 यही तो बाय लिखा है, 10। यही तो लिखा है यहाँ पे। ये पैकेट ही तो है एक तरह से। एक पैकेट जिसमें 2 पोटेशियम के एटम डाल दिए, 3 जिंक के डाल दिए, 12 कार्बन के डाल दिए, 12 नाइट्रोजन के डाल दिए, एक पैकेट ही तो है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर समझा। ठीक है, तो जैसे अगर आपको पता है कि भाई इतने कार्बन एटम है, आप यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब हमने उल्टा लिख दिया रादर देन राइटिंग दिस, क्योंकि ये बात हमें समझानी है। हमें इतना पता है कि यहाँ नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, बट फॉर्मूला बनाना है। तो व्हाट वी आर सेइंग, number of molecules into how many number of that element into that molecule, है ना? how many number of that element हाँ सर। into molecule। तो यहाँ पे कितना आया? 1 आया। तो हाँ हमारा सर। फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह हम क्या लिख लें? मोल्स लिख लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट into N1 equals to number of moles of product, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू N2। N1 और N2 क्या हो गए वहां पे? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स हो गए उन मॉलिक्यूल्स में किसी भी एलिमेंट के जिसके लिए POAC लगा रहे हैं, बस यही फॉर्मूला है। ओके सर। चलो आगे, और किसी को कोई डाउट? तो फिर ठीक, बंद कर रहे हैं या फिनिशिंग है?